Hello, welcome back once again in basic electronics subject. In the last lecture where we started the topic of filters. After the rectifier circuit, we have started the topic of filter circuit. So in the last lecture, I have explained you why do we need filters along with the rectifier circuit. So as we know already, your rectifier circuit is converting AC into DC, but it is not converting into pure DC. Still, most of the ripples are also present along with the DC output. So in order to get the pure form of DC, in order to get pure form of DC, we require some filter circuits apart with along with rectifier circuits. So this is just again the same thing which I was explaining you in the last lecture. So therefore we need direct current in most of the electronic component. We need actual pure form of DC, but rectifier alone is not capable of providing you pure DC. So that's why along with the rectifier circuit, we use filter circuits also. So what are the different types of filter circuits? I have explained you in the last lecture. The different types of filter circuit. The types of filter circuit. It is shunt capacitor filter, series inductor filter, LC filter, and pi filter. So this note is exclusively for the filters and the types of filters. The things it is covering all the filter section, filter notes. So this is just the diagram. At the output of rectifier, you are getting this rectified output. Now you are applying to the filter circuit, and you are getting an pure form of DC at the output. This is the ideal diagram. Means ideally we want this type of waveform. Means DC is just a straight line direct current. So at the input of filter circuit, we are applying the output from the rectifier circuit. So this is the full wave rectifier output which we are applying to the filter circuit. And from the output of filter, we are getting a pure form of DC signal. Also, a very short thing for the filter regarding filter, I have explained you a filter circuit is constructed using two main components, that is inductor and capacitor. So as we have seen in the types of filter, there are only two components are used, inductor and capacitor. So these two main components are used for the filter circuit, and inductor and capacitor. And I have also told you the purpose of inductor and capacitor, the main shortcut working of capacitor inductor. And inductor allows DC and blocks AC. Remember this, inductor will always allow to pass the DC signal and blocks the AC signal, whereas your capacitor, it's always allow AC component to pass through it and blocks DC component. So if this thing, you must be clear with this thing, then the job of filter, it is very easy for you. So always, if you remember this thing, what is the job of inductor and what is the job of capacitor? The job of inductor is to pass DC from it and blocks AC, and the job of capacitor is to pass AC and block DC. If these two things is very much clear to you, then the working of filter is going to be very much easy for you. ओके, तो बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? तो फिल्टर्स के बारे में हम लोग ने स्टार्ट किए थे, और फिल्टर्स में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक टाइप को कंप्लीट भी किया था, दैट इज शंट कैपेसिटर फिल्टर को। तो ये डायग्राम जो है वो आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर का है। ये जस्ट आपको कोई सर्किट के साथ में नहीं है, जस्ट एक कैपेसिटर का डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि इस तरीके से हम लोग ये कैपेसिटर को प्लेस करते हैं अपनी रेक्टिफायर सर्किट के साथ में। तो कोई भी रेक्टिफायर सर्किट हो, उस रेक्टिफायर सर्किट में आप शंट कैपेसिटर को इस तरीके से प्लेस करोगे, और इनपुट में आपके पास क्या रहेगा, फिल्टर के ये रेक्टिफायर आउटपुट रहेगा। तो फिर ये कैपेसिटर आपको आउटपुट में किस तरीके से जनरेट करके देगा, फिल्टरिंग करके देगा, ये वर्किंग हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करके। सो इन दिस वे यू आर गेटिंग द फिल्टर आउटपुट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो इस तरीके से फिल्टर आउटपुट मिलेगा बाय यूजिंग दिस शंट कैपेसिटर। तो ये आपका रेक्टिफायर आउटपुट था जो हिडन में डॉट डॉट पे मार्क किया हुआ है, और ये विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर आपको किस तरीके से एक नियर टू द डीसी आपको ये सिग्नल जनरेट होगा। तो बहुत सारा रिपल इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है इधर पे बहुत अच्छी तरीके से वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये कैपेसिटर क्या करता है, एसी को पास करता है। तो एसी पास करके क्या करेगा, उसको ग्राउंड कर देगा,
और आगे किसको भेजेगा, डीसी को भेजेगा। इस तरीके से आपको डीसी सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है, द रेक्टिफाइड आउटपुट व्हेन पास थ्रू दिस फिल्टर द एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल आर ग्राउंडेड। तो जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि कैपेसिटर क्या किया हुआ है, पैरेलल में यूज हुआ है, तो जो एसी कंपोनेंट यहाँ से पास होंगे और होके क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे, आर ग्राउंडेड थ्रू द कैपेसिटर विच अलाउज एसी कंपोनेंट। द रिमेनिंग डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल आर कलेक्टेड एट द आउटपुट। और जितने भी डीसी सिग्नल है वो आउटपुट में क्या होंगे, कलेक्ट होंगे। सो द अबव फिल्टर आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एन इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये सारे फिल्टर्स की बात चल रही है, तो ये कैपेसिटर से भी बनते हैं और इंडक्टर से भी बनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, वन बाय वन फिल्टर कवर कर रहे थे। तो ये बहुत शॉर्ट में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है सारे टाइप्स के फिल्टर के बारे में। दिस नोट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए नोट्स हेल्पफुल नोट्स है। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसमें पूरा समराइज एक्सप्लेनेशन है, फिल्टर क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ फिल्टर क्या है, और टाइप्स ऑफ फिल्टर का शॉर्ट में पूरा डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो यहाँ पे अब बात चल रही है, हम लोग जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फिल्टर की बात करने वाले थे, वो कौन से फिल्टर की बात करने वाले हैं, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, एज एन इंडक्टर अलाउस डीसी एंड ब्लॉक्स एसी। तो ये क्या करता है, इंडक्टर हमेशा क्या करता है, डीसी को पास करता है और एसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अ फिल्टर कॉल्ड सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसलिए हमेशा जो इंडक्टर है वो कहाँ पे यूज होता है, सीरीज में यूज होता है। इन द रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट के हिसाब से देखो या लोड के हिसाब से देखो, ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं इसको। बाय कनेक्टिंग द कंडक्टर इन सीरीज बिटवीन द रेक्टिफायर एंड द लोड। तो रेक्टिफायर और लोड के बीच में हम इस इंडक्टर को सीरीज में यूज करते हैं। ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, द फिगर बिलो द सर्किट ऑफ अ सीरीज इंडक्टर। तो ये फिल्टर के पहले यानी इंडक्टर के पहले जो रेक्टिफायर आउटपुट इसको दिया जाएगा, और फिल्टरिंग करके ये आउटपुट कैसा जनरेट करेगा उसका इधर पे डायग्राम आपको दिखाएगा। तो एट द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्टर, तो इंडक्टर का यूज करके आपको इस रेक्टिफाइड इनपुट का ये आउटपुट जनरेट होगा, विच इज नियर टू द डीसी, नॉट एग्जैक्टली डीसी नहीं है, इट इज ऑल फिल्टर्स आर डूइंग अप्रोक्सीमेटली नियर टू द डीसी वैल्यू। 100% डीसी तो नहीं बोलेंगे हम लोग कोई भी फिल्टर सर्किट को, बट बहुत सारा रिपल्स रिमूव करके दे आर नियरिंग टू द आइडियल डीसी। So the rectified output when passed through this filter, the inductor blocks the AC component. They are present in the signal in order to provide a pure DC. This is a simple primary filter. तो ये सब सिंपल प्राइमरी फिल्टर है, अलोन कंपोनेंट ऑफ इंडक्टर, अलोन कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटर को यूज करना। तो ये सब बेसिक प्राइमरी फिल्टर्स है। तो इनका सिंपल सा रोल है, ये क्या करते हैं, ये इंडक्टर क्या करता है, आगे किसको पास करता है, डीसी को पास करता है। तो हम लोग को आउटपुट में डीसी चाहिए, और किस चीज़ को रोकता है, एसी को रोकता है, क्योंकि एसी हम लोग को आउटपुट में नहीं चाहिए। एसी कंपोनेंट को रोकता है, डीसी कंपोनेंट को पास करता है। इस तरीके से हम लोग को नियर टू द डीसी आउटपुट जनरेट होता है। ना इसी तरीके से फिर जो नेक्स्ट टाइप है आपका वो कौन सा है, एलसी फिल्टर। तो अब एलसी फिल्टर में क्या हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा। इंडक्टर, सीरीज इंडक्टर भी यूज होगा, शंट कैपेसिटर भी यूज होगा। यानी आपको और फिल्टरिंग और इम्प्रूव करना है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर फिल्टरिंग फर्दर, और अच्छा इम्प्रूव करना है, तो आप अगर दोनों कंपोनेंट का यूज़ करोगे तो और अच्छा फिल्टरिंग मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा था आउटपुट में, इट इज़ नॉट मच क्लोजर। अब ये जो आउटपुट आपको इंडक्टर का दिख रहा है और ये जो आपको कैपेसिटर का दिख रहा है, इन दोनों का यूज़ करके, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके, नाउ यू आर गेटिंग सम बेटर परफॉर्मेंस इन द आउटपुट। तो ये आउटपुट का परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता है, फिल्टरिंग और अच्छी हो जाती है, यानी मोर नंबर ऑफ एसी कंपोनेंट्स आते रिमूव होते हैं। तो एलसी फिल्टर में वही दिया हुआ है, अ फिल्टर सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ बेटर आउटपुट where the efficiencies of both inductor and capacitor can be used। तो दोनों का जो बेटर परफॉर्मेंस है वो दोनों का मिला के यूज होगा, तो और अच्छा बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, बहुत अच्छा फिल्टरिंग मिलेगा। सो द फिगर बिलो शोज द सर्किट डायग्राम ऑफ एलसी फिल्टर। तो एलसी फिल्टर हमेशा आपके रेक्टिफायर सर्किट और लोड के बीच में इस तरीके से यूज होगा। यहाँ पे आपका रेक्टिफायर सर्किट होगा, ये एलसी फिल्टर है, और इधर आउटपुट में आपका लोड रेजिस्टेंस होगा। सो बिटवीन रेक्टिफायर एंड लोड रेजिस्टेंस इस तरीके से ये एलसी फिल्टर प्लेस किया हुआ होगा। तो ये डायरेक्टली खाली एलसी फिल्टर का डायग्राम बता रहा है, हम लोग तो पूरा सर्किट डायग्राम के साथ देखेंगे, ईच एंड एवरी रेक्टिफायर सर्किट के साथ में। So the rectifier output when given to this circuit, the inductors allow DC component to pass through it, blocking the AC component in the signal. Now from that signal, few more AC components, if any present,
आर ग्राउंडेड सो दैट वी गेट अ प्योर डीसी आउटपुट। समझ में आई बात आप लोग को? तो सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे सीरीज इंडक्टर है। तो सीरीज इंडक्टर क्या करेगा, कौन से कंपोनेंट को पास करेगा, डीसी को पास करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट और भी है, ये भले से ये डीसी को पास कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी स्टिल सम अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट्स आर देयर, तो ये कैपेसिटर पिक्चर में आएगा। कैपेसिटर क्या करेगा, उस एसी कंपोनेंट को ग्राउंड कर देगा। यानी इस तरीके से क्या हो रहा है, आप डबल प्रिकॉशन ले रहे हो। आप एल से पास कर रहे हो तो आप डीसी जनरेट कर रहे हो, लेकिन उस डीसी में भी अगर स्टिल सम अमाउंट ऑफ एसी रहेगा तो वो कैपेसिटर के थ्रू रिमूव होगा। यानी आप क्या कर रहे हो, अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। तो दिस फिल्टर इज ऑल्सो नोन एज चोक इनपुट फिल्टर, एज द इनपुट सिग्नल फर्स्ट एंटर्स द इंडक्टर। तो इस फिल्टर को चोक फिल्टर, इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो प्लेस जो फिल्टर में आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंडक्टर आ रहा है, और इंडक्टर को ही चोक बोला जाता है, कॉइल को। So the output of this filter is better than the previous ones. तो ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, इट इज बेटर देन द प्रीवियस वन, प्रीवियस टू। प्रीवियस टू था आपका कैपेसिटर वाला, अलोन कैपेसिटर वाला, अलोन इंडक्टर वाला। तो इन दोनों के आउटपुट से तो बेटर आउटपुट आपको एलसी कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। ओके, फिर इसी के साथ एक आपका लास्ट टाइप जो है वो कौन सा है, पाई फिल्टर। इसको पाई फिल्टर क्यों बोलते हैं, एक रीजन की वजह से बोलते हैं। पहले तो हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। दिस इज एन अनदर टाइप ऑफ फिल्टर सर्किट विच इज वेरी कॉमनली यूज। इट हैज कैपेसिटर एट इट्स इनपुट एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। नाउ अब ये जो आपको पाई फिल्टर जो दिख रहा है, तो दिस पाई फिल्टर इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ फिल्टर। ये दो टाइप के फिल्टर का कॉम्बिनेशन है। एक आपका ये शंट में कैपेसिटर वाला, एक शंट कैपेसिटर फिल्टर, और दूसरा आपका ये जो अभी हम लोग ने ऊपर देखे, इट इज एल एंड सी, एल और सी जो आपका कंपोनेंट है, एल एंड सी। तो एक शंट कैपेसिटर है और उसके साथ में आपने क्या प्लेस किए, एलसी फिल्टर। तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए क्या बोला जाता है, पाई फिल्टर। क्यों पाई फिल्टर बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल में आजू बाजू दो कैपेसिटर है और बीच में क्या इंडक्टर। तो इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ सिंबल ऑफ पाई। तो ये पाई का सिंबल जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई उसका नेम क्या दे दिए, इसको पाई फिल्टर दे दिए। इट इज रिप्रेजेंटिंग सिंबल पाई, दैट्स वाई द नेम इज गिवन पाई फिल्टर, which is actually the combination of two filters, shunt capacitor and LC filter। और ये इस फिल्टर में सबसे पहले फ्रंट में कौन सी चीज आ रही है, कैपेसिटर आ रही है। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर फिल्टर को और भी क्या कहते हैं, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इस फिल्टर में सबसे पहले इनपुट पे क्या प्लेस आ रहा है, क्या प्लेस हो रहा है, कैपेसिटर हो रहा है। एलसी में सबसे पहले फ्रंट में इनपुट में क्या आ रहा था, एल, इंडक्टर। तो दैट्स वाई उसको चोक इनपुट फिल्टर बोलते हैं। और यहाँ पे पाई फिल्टर को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, बिकॉज इन द फ्रंट of the filter it is capacitor used, so that's why उसको capacitor input filter बोलते हैं। Here two capacitors and one inductor are connected in the form of pi shape, यही चीज लिखी हुई है, pi network। A capacitor in parallel, then an inductor in series, followed by another capacitor in parallel makes this circuit। बात समझ में आई? तो पहले आपने पैरेलल में कैपेसिटर यूज किए, फिर सीरीज में इंडक्टर को यूज किया, फिर पैरेलल में कैपेसिटर को यूज किए। तो ये पाई शेप जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, so that's why उसका नेम ही क्या दे दिया गया, पाई फिल्टर दे दिया गया। If needed, several identical section can also be added to this according to the requirement। The figure below shows a circuit for pi filter। तो यहाँ पे ये चीज और क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपको और ऐसे सेक्शन रिक्वायर्ड है पाई फिल्टर के, तो आप और इसको जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो अपनी सर्किट में, ताकि और बेटर फिल्टरिंग हो। तो जितने ज़्यादा आप सर्किट और प्लेस करोगे उतना ज़्यादा और फिल्टरिंग होगा, उतना ज़्यादा और अच्छा फिल्टरिंग होगा। तो आप एकदम एग्जैक्टली डीसी के करीब में आ जाओगे। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, अगर आप डायग्राम देख रहे होगे, तो पाई फिल्टर के इनपुट में आपका रेक्टिफाइड आउटपुट है और इसका आउटपुट देखो, तो इट इज़ वेरी बेस्ट कंपेयर टू ऑल द थ्री टाइप्स। तो ये बिल्कुल आपका आइडियल के करीब में आ गया। इट इज़ सिमिलर, वेरी मच सिमिलर टू योर आइडियल डीसी आउटपुट। तो कितना बेटर परफॉर्मेंस किया फिल्टरिंग करके, आप एग्जैक्टली डीसी के करीब में आ गए। यानी इसमें बहुत पूरा ज़्यादा से ज़्यादा पूरा एसी कंपोनेंट आपका रिमूव हो गया। तो जितना ज़्यादा आप कंपोनेंट प्लेस करोगे, एल और सी का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, उतना आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, उतना बेटर आपको फिल्टरिंग मिलेगा। So in this circuit we have capacitor in parallel, then an inductor in series, followed by another capacitor in parallel। तो कैपेसिटर C1 क्या कर रहा है, वही चीज़ हम लोग ने जो पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर C1 ज़्यादा रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है डीसी को,
और AC को पास कर रहा है. So this filter capacitor offers high reactance to DC and low reactance to AC signal. After grounding the AC component present in the signal passes to the inductor for further filtration. तो ये जो पहला कैपेसिटर आपका प्लेस किया हुआ है, इसका काम क्या है, ये हाई रिएक्टेंस किसको ऑफर करेगा, डीसी को. यानी डीसी को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा. तो डीसी कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा इंडक्टर की तरफ. और जो एसी कंपोनेंट है उसको लो रिएक्टेंस ऑफर करेगा. उसको लो रिएक्टेंस ऑफर करेगा मतलब जो एसी कंपोनेंट है इस कैपेसिटर से पास होके किधर जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंडिंग होगा. तो यानी आगे क्या जा रहा है, आपका डीसी आउटपुट जा रहा है. फिर इसी तरीके से सीरीज इंडक्टर का जॉब वही है. दिस इंडक्टर ऑफर्स लो रिएक्टेंस टू डीसी कंपोनेंट while blocking the AC component if any got managed to pass through the capacitor C1. तो अगर कोई AC कंपोनेंट मैनेज कर पा रहा है, पास हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, फिर उसको फर्दर ब्लॉकिंग करेगा. तो ये इंडक्टर फर्दर ब्लॉकिंग करेगा किसको, अगर स्टिल सम अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट यहाँ से पास हो रहा है, जा रहा है, बच के निकल रहा है यहाँ से, तो इंडक्टर फिर क्या करेगा, उसको रोकेगा. तो इंडक्टर फिर क्या करेगा, डीसी को आगे भेजेगा, एसी को रोकेगा. अब फिर स्टिल यहाँ से फिर भी कुछ एसी कंपोनेंट बच के निकल रहे हैं, यहाँ से भी बच गए, यहाँ से भी बच गए, अब भी एसी कंपोनेंट कुछ है. तो इसलिए ये थर्ड वाला जो आपका सेकंड कैपेसिटर है वो आएगा पिक्चर में, और वो क्या करेगा, आपके एसी कंपोनेंट को ग्राउंड करेगा, फर्दर फिल्ट्रेशन करेगा. So now the signal is further smoothened using this capacitor so that it allows any AC component present in the signal which the inductor has failed to block. तो समझ में आई बात आपको. अगर यहाँ तक भी इंडक्टर फेल्ड हुआ है कुछ एसी कंपोनेंट को रोकने के लिए, तो ये कैपेसिटर फिर क्या करेगा, उसमें और फिल्टरिंग करेगा, उसमें और बेटर परफॉर्मेंस लेके आएगा. उस एसी कंपोनेंट को ये फर्दर क्या कर देगा, ग्राउंड करेगा, एंड इट विल ओनली गोइंग टू पास the DC component at the output of this filter. So in this way you are getting very much similar, exactly original to your DC ideal DC signal. तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था आपका, पूरा शॉर्ट में पूरा डिस्क्रिप्टिव नोट्स था ये फिल्टर का. सो दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड विद यू. वो बहुत अच्छा ये फिल्टर का नोट्स था, इसके लिए मैंने ये आपके लिए आपके हिसाब से था, एकदम शॉर्ट में हर टाइप के फिल्टर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लेके आया. बट आपको क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आता है कि आपको रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम के साथ में वो फिल्टर को बनाने के लिए पूछता है, ड्रॉ एलसी फिल्टर विथ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है. तो दैट्स व्हाई इन माय नोट्स, तो मैं अपनी नोट्स में मैंने हर पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम को साथ में लेके बनाया था, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए. नो डाउट आपको एक बार अगर चीज़ समझ में आ गई तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कोई भी टाइप के सर्किट को बनाने के लिए. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी मच ईजी. तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने शंट कैपेसिटर का टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे. नाउ ये जो टॉपिक है वो इंडक्टर से रिलेटेड है, सीरीज इंडक्टर से रिलेटेड है. तो विथ सीरीज इंडक्टर, ये आपके सामने इसका डायग्राम है. तो सीरीज इंडक्टर में क्या होता है, इन योर सीरीज इंडक्टर यहाँ पे आपको इंडक्टर को सीरीज में प्लेस करना होता है बिटवीन द रेक्टिफायर सर्किट एंड लोड रेजिस्टेंस. तो हम लोग ने यही देखे थे कि सीरीज इंडक्टर फिल्टर में ये जो सीरीज इंडक्टर है, ये जो इंडक्टर है उसको सीरीज में प्लेस करना होता है किसके बीच में, रेक्टिफायर सर्किट और ये लोड रेजिस्टेंस के बीच में. इस तरीके से आप इंडक्टर फिल्टर को प्लेस करते हो. ये आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है. तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी का सेंटर टैप होता है, आपको पता है, यहाँ से बीच में से उसको ग्राउंड करते हैं. ये D1 डायोड है, D2 डायोड है, और यहाँ पे आपका इंडक्टर है, ये लोड रेजिस्टेंस है, और इसको इधर पे ग्राउंडिंग किया हुआ है. ओके, नाउ इसका हम लोग ने वेवफॉर्म जो था वो रेक्टिफायर का तो देख चुके थे. अब ये आपका ये फिल्टर का रेक्टिफायर आउटपुट, फिल्टर का आउटपुट है. तो इस तरीके से आप ये इनपुट में, रेक्टिफायर के इनपुट में ये सिग्नल देते हो. तो रेक्टिफायर के इनपुट में ये AC मेन सप्लाई जाता है, और रेक्टिफायर आउटपुट कैसा जनरेट करता है, आपको ये हिडन में मार्क करके दिख रहा है, हिडन में डॉट डॉट पे. तो डॉट डॉट वाला जो वेवफॉर्म है वो कौन सा वेवफॉर्म है, आउटपुट विदाउट फिल्टर, यानी रेक्टिफायर का आउटपुट है. तो आउटपुट विदाउट फिल्टर आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा. और ये इंडक्टर का यूज करके जो आपको आउटपुट मिलेगा, इट इज़ नियरिंग टू द DC वैल्यू. तो इस तरीके से ये आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, AC कंपोनेंट्स को रिमूव किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द AC कंपोनेंट्स आर रिमूव. तो ये आपका इस तरीके से जो जो आपको दिख रहा है, नियरिंग टू द DC वैल्यू, दिस इज द
जॉब ऑफ इंडक्टर यूज। तो इंडक्टर का जो यूज करके आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। एक और चीज़ बेटर क्लियर करूंगा, ये तो आपने बेसिक चीज़ पढ़े आपने कि इंडक्टर क्या करता है, डीसी को पास करता है, एसी को ब्लॉक करता है। अब आपको यहाँ पे और उसकी अच्छी तरीके से वर्किंग क्लियर होगी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर? So in this working, the basic property of inductor is that it opposes any change in current flowing through it. ये एक बेसिक इसका वर्किंग है इंडक्टर का। तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, जिस तरीके से आपको कैपेसिटर की प्रॉपर्टी पता है, कैपेसिटर इज यूज फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पर्पस, तो इसी तरीके से इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इंडक्टर जो है ना, चेंज इन करंट को क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। दैट्स वाई हम लोग इसलिए बोलते हैं वो क्या पास करता है, डीसी को पास करता है, एसी को ब्लॉक करता है। तो ये चेंज इन करंट मतलब क्या है, इट इज चेंज इन करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट। चेंज इन करंट इज नथिंग बट अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट, एसी करंट में हमेशा क्या होता है, करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इंडक्टर इसलिए प्रॉपर्टी इसलिए डिजाइन किया होता है कि वो हमेशा क्या करता है, इट अपोजेस, वो हमेशा अपोज करता है एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो उसके सामने से अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है और उसमें कोई एनी चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। तो इट ऑफर्स हाई रिएक्टेंस टू एसी कंपोनेंट इन दी आउटपुट वेवफॉर्म। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टेंस ऑफर करता है, यानी उसको अपोज करता है एसी कंपोनेंट को, रिपल को इन द आउटपुट वेवफॉर्म। Therefore, with the help of series inductor filter, the ripples in the output waveform reduces to a great extent. तो बात समझ में आई। तो एसी में क्या होता है, कंटिन्यूसली करंट चेंज होता है, और आप इंडक्टर की प्रॉपर्टी यही है कि अगर उसमें कोई भी चेंज इन करंट मिलेगा उसको अपोज करेगा। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज करते हुए, दैट्स वाई इंडक्टर को हम लोग इसलिए कहते हैं इट ऑलवेज ब्लॉक्स एसी एंड पास डीसी। तो ये जॉब है, ये रोल है आपके इंडक्टर का। तो ये इंडक्टर का यूज करके आपको फिल्टरिंग मिलता है, फिल्टरिंग मिल के नियर टू द डीसी वैल्यू आप पहुंचते हो। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ फिल्टर एंड दिस इज द आउटपुट विदाउट फिल्टर। तो ये दोनों चीज मार्क की हुई है। तो आउटपुट विदाउट फिल्टर आपका जो रेक्टिफायर आउटपुट था वो है, और ये जो डार्क में लाइन में जो बनाया हुआ है, दिस इज द आउटपुट विथ फिल्टर। तो ये फिल्टर का आउटपुट है। Now what is the expression of ripple factor? लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने एक्सप्रेशन देखे थे रिपल फैक्टर का फॉर शंट कैपेसिटर। नाउ दिस इज द रिपल फैक्टर एक्सप्रेशन फॉर योर सीरीज इंडक्टर। तो सीरीज इंडक्टर के यूज करके उसका रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन ये है, इन योर न्यूमरेटर आर एल, दिस आर एल इज लोड रेजिस्टेंस। आर एल, ये आर और एल बाजू में नहीं है, ये आर और एल मतलब ये आर एल है, नीचे वाला एल है, आर एल लोड रेजिस्टेंस। तो आर एल अपॉन 3√2 ओमेगा एल। तो आर एल अपॉन 3√2 ओमेगा एल, वेर ओमेगा इज इक्वल टू आपको पता है 2 पाई एफ होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ। तो एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू द रेक्टिफायर, जो आप रेक्टिफायर को एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो वो है, और ये 2 पाई आपको पता ही है। तो ओमेगा इज ऑलवेज इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो इस अगर आप रिपल फैक्टर के एक्सप्रेशन में देखोगे तो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक चीज़ आपको ऑब्जर्व हो रही है कि रिपल फैक्टर इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो रिपल फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, लोड रेजिस्टेंस को। तो फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन रिपल फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एल फॉर हैवी लोड एप्लीकेशन। तो किसके लिए ये सुटेबल है, हैवी लोड एप्लीकेशन के लिए। क्यों हैवी लोड एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है, रिपल फैक्टर की वैल्यू कम कब होगी, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उतना कम रिपल फैक्टर। तो यानी लोड रेजिस्टेंस का कम होना मतलब क्या, आपका लोड हैवी होना, यानी सप्लाई वोल्टेज ज्यादा होना, यानी रिएक्टेंस कम मिलेगा लोड को। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम मतलब क्या, इट इज गोइंग टू गिव मोर वोल्टेज, मोर सप्लाई। तो हैवी लोड वाले पर्पज के लिए ये यूज होगा, जहाँ पे लोड का रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता है। अगर लोड का रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा तो रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था लोड रेजिस्टेंस को, इसलिए शंट कैपेसिटर फिल्टर किसके लिए सुटेबल था, लो लोड एप्लीकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, रिपल फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज मोर सुटेबल फॉर हैवी लोड एप्लीकेशन। तो हैवी लोड एप्लीकेशन के लिए आप इंडक्टर को यूज कीजिए, तो वहाँ पे फायदा है। तो जो डायग्राम अभी मैंने आपको समझाया हूँ वो कौन सा था, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर को यूज करके था। अब ये जो डायग्राम है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, जस्ट आपने क्या किए, लोड रेजिस्टेंस के पहले क्या प्लेस कर दिए,
सीरीज में इंडक्टर प्लेस कर दिए। तो ऑल द डायग्राम्स इज वेरी मच सिमिलर। आपको 3 सर्किट डायग्राम आपको आगे अच्छे से बनाने, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको खाली क्या एक कंपोनेंट को ऐड करना है। तो ये डायग्राम जो है वो आपका क्या है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ कौन सा फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर हमेशा कहाँ पे प्लेस होगा, ये रेक्टिफायर और लोड रेजिस्टेंस के बीच में। तो ये रेक्टिफायर सर्किट है, ये लोड रेजिस्टेंस है, उसके बीच में सीरीज में आपको इंडक्टर यूज करना है। तो इसका वेव फॉर्म भी आपको क्या मिलेगा, सिमिलर टू द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, जैसा भी आपको मैंने वाला डायग्राम बताया था, सिमिलर टू दैट ओनली। ये आपका इसका वेव फॉर्म भी है। ये आपका एसी सप्लाई, और ये जो मार्क किया हुआ है हाईलाइट में डॉटेड में, वो आउटपुट विदाउट फिल्टर है, और जो डार्क में मार्क किया हुआ है इट इज आउटपुट विथ फिल्टर। तो आउटपुट विथ फिल्टर में आपको नियर टू द डीसी आप अप्रोक्सीमेटली पहुंचते हो। सर मैक्सिमम वोल्टेज सेम ही रहेगा ना दोनों में? हाँ हाँ, मैक्सिमम वोल्टेज सेम ही रहेगा। ओके सर। मैक्सिमम वोल्टेज में चेंज नहीं आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज इज गोइंग टू बी सेम। नाउ ये लास्ट आपका जो था कौन सा था, ये हाफ वेव रेक्टिफायर विद सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर, जस्ट आपने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिए, सीरीज में इंडक्टर प्लेस कर दिए। तो ये सब पूछता है आपको, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सीरीज इंडक्टर फिल्टर विथ हाफ वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर विथ सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो इस तरीके सब चीज़ आपको डायग्राम वगैरह बनाने आना चाहिए, और उससे रिलेटेड उसका वेव फॉर्म बनाने आना चाहिए। तो ये आपका एसी सप्लाई मेन था, ये डॉटेड में रेक्टिफायर का आउटपुट था, ये बीच में लाइन मार्क की हुई, और इसके अप्रोक्सीमेट में आपका आउटपुट आएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहता है, आपको पता ही है, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक साइकिल तो ऑलरेडी रिमूव किया होता है। तो ऑलरेडी उसका रेक्टिफायर आउटपुट ही बहुत पुअर है, उसमें बहुत सारा एसी ही है, मतलब डीसी के बराबर तो है ही उसमें। तो हाफ वेव रेक्टिफायर नॉर्मली इट इज़ यूज फॉर बेसिक एप्लीकेशन ओनली, उसके बेसिक पर्पज के लिए यूज होता है। तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर से ही अच्छा फिल्टरिंग मिलेगा और नियर टू द डीसी वैल्यू मिलेगा। What are the advantage of series inductor filter? So the advantages of series inductor filter reduces ripple in the output waveform. तो ये आउटपुट वेवफॉर्म में रिपल्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इट इज बेस्ट यूज फॉर हैवी लोड एप्लीकेशन। ये याद रखो कि सीरीज इंडक्टर फिल्टर किसके लिए यूज होता है, हैवी लोड एप्लीकेशन के लिए। क्यों, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल फैक्टर। तो अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तभी रिपल फैक्टर कम होगा, और लोड रेजिस्टेंस का कम होना मतलब क्या, हैवी लोड के लिए यूज करना। यानी लोड का रेजिस्टेंस ही आप कम कर रहे हो, तो मतलब क्या, वो आप हैवी लोड वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो दैट्स वाई इसलिए सीरीज इंडक्टर फिल्टर को क्या कहते हैं, इट इज सुटेबल फॉर हैवी लोड एप्लीकेशन। हैवी लोड एप्लीकेशन के लिए यूज करो तो अच्छा रहेगा। अगर लोड लोड के लिए आप यूज करोगे तो रिपल फैक्टर ज्यादा मिलेगा, तो मोर नंबर ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे यूज करके फायदा नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज इंडक्टर फिल्टर क्या है, इट इज बल्कि, यस। तो जब इंडक्टर की बात आती है, कॉइल जब यूज होता है, तो हमेशा क्या होता है, वेट क्या हो जाता है उसका, बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। और इंडक्टर जाहिर सी बात है जब वो कंडक्ट करता है तो वो नॉइस को भी जनरेट करता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस नॉइस ऑल्सो। तो ये सारे डिसएडवांटेज है आपके सीरीज इंडक्टर फिल्टर के, जो कि खुद के इंडक्टर के ही सब सारे डिसएडवांटेज है। तो इंडक्टर इज नथिंग बट कॉइल, तो कॉइल इज नथिंग बट क्या होगा, वेट बढ़ेगा, बल्कि होगा, और कॉस्टली भी होगा। और जब कॉइल्स यूज होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंड होती है, एंड इट विल कॉज एंड प्रोड्यूसेस सम टाइप ऑफ नॉइस ऑल्सो इन द सर्किट। तो ये सारी चीज़ें आपके सब डिसएडवांटेज वगैरह सब में आ जाएगा इधर पे इसमें। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आज मैं इधर पे लेक्चर में इतना ही बताता हूँ। आज मैंने जो टॉपिक कवर किया वो कौन सा टॉपिक किया है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अभी भी आपके जो 2 टाइप्स बाकी है, दैट इज एलसी फिल्टर एंड पाई फिल्टर, गोइंग टू बी सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो 2 टॉपिक को भी कवर करके लास्ट में इसका भी कंपैरिजन करेंगे, चारों टाइप्स का कंपैरिजन करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस पर्टिकुलर फिल्टर टॉपिक ऑल्सो। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग, समझ में आ रहा है आप सब लोग को, बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा घर में ध्यान दिया करो, स्टडी किया करो, क्योंकि टॉपिक्स होते जा रहे हैं। अभी ये टाइम है, तो आप लोग अगर थोड़ा मेहनत नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा, फिर डिफिकल्टी होगा।
क्योंकि अब ये जो चीज़ है वो ऐसे ही गुजरेगी। वी डोंट नो कि हम कब वापस से कॉलेज में आएंगे, कब मिलेंगे। तो हम लोग को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है और ये चीज़ में ही हम लोग को मेहनत करना है, पढ़ना है। दैट्स इट फॉर अस। ओके, तो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टडी वेल। थैंक यू वेरी मच।